Now SQL environment. How the SQL environment, or I mean to say, the user interface looks like the SQL. So let me show you the user interface of SQL. So do you see this? This kind of user interface you will get. This is the place where you will write your queries, right? Whatever the question you want to ask from the database, you will write it here. Okay. This is the place where you will see the result of your query. So this is called as result tab. Okay. And this is the tab which is called as Object Explorer. In the Object Explorer, you will see your databases and the tables which are available. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now let me show you how it will look like in actually. Let me open. How will you launch? So today I will give you the link what to install. So once you install it, how will you launch SQL Server? Click on the start button and search for SQL. So, and do you see this option, Microsoft SQL Server Management Studio? So I'll click on this. And then it will ask you to connect to the server. So I'll say connect. And I'll click on the top. Do you see option on the top, new query? You will click on this option called as new query. So I'll click on new query. And this is the screen you will get. So I told you, what is this? What is this called? Object Explorer. Object Explorer. This is the query editor. Query editor means जहां पे हम अपनी queries लिखेंगे, ठीक है? और अभी result कहाँ आएगा? नीचे आएगा जब हम इसमें कोई query लिखेंगे, ठीक है? So let me write one query. Don't worry about that. We will learn that later. Okay. So just want to show you. So how will you write the query? Say, let's say I write a query. Select star from. First of all, मैं इसमें एक database select करता हूँ. Let me use. मैंने एक क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स एलटी डॉट कस्टमर. इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे आप? सेलेक्ट करो माउस से पूरी स्टेटमेंट को और इस बटन पे क्लिक करोगे, कॉल्ड एज एग्जीक्यूट. दिख रहा है बटन ऊपर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेलेक्ट द क्वेरी एंड देन यू विल क्लिक ऑन दिस बटन कॉल्ड एज execute. So what will happen? Let's see. I'll click on it. And do you see whatever was there in this table, the result came in the bottom. Is that clear? Yes. So whatever the command you have to, because this editor, you can have multiple commands, right? If you will not select this command, what will happen? One by one, it will execute all the commands which are there in the editor. देखो जरूरी तो नहीं है, राइट? लेकिन एज ए बेस्ट प्रैक्टिस आई विल एडवाइज यू टू डू दैट, ठीक है? बट अगर इसके बगैर भी देखो, ये सेमीकोलन से ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी लाइन खत्म होगी, राइट? बट इट इज नॉट मैंडेटरी. बट मेरा सजेशन है कि आप सेमीकोलन लगाओ, बिकॉज you will be able to read your code better. You will be able to understand your code better, that where my command has finished. So what is this? This is query editor. This is result. And this is object explorer. ठीक है? अब ऑब्जेक्ट में देखो, ये सबसे पहले डेटाबेसेस दिख रहा है, तो इस पे प्लस साइन है. आई विल एक्सपैंड द डेटाबेस. And then these are the databases which are available in my system, in my server. ठीक है? अब डेटाबेस के अंदर मैंने क्या बताया था? डेटाबेस के अंदर क्या होता है? टेबल्स होती है. तो मैं ये एक डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस है. अब इस डेटाबेस को मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा? इसके अंदर जो टेबल्स हैं वो दिखेंगे. तो मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? And these are the contents of this database. Then do you see a folder for tables? I click on the tables, and these are the tables which are there in the AdventureWorks
LT database. Any questions? ठीक है, उसको छोड़ दो, अभी क्वेरी में मैंने क्या लिखा है, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल लर्न दैट, बट आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द यूजर इंटरफेस, दैट्स व्हाई आई रोट दैट. सर यस प्लीज गो अहेड. सर ये टेबल जो दिख रहा है ये पहले से बनाया होगा ना? हाँ, ये पहले से बनी हुई है, मैंने बना के रखी हुई है, तो आई एम जस्ट सीइंग द कंटेंट ऑफ दैट. डोंट वरी अबाउट द कमांड राइट नाउ, इसका क्या मतलब है हम उसको सीखेंगे, but the objective is that you should be able to view the user interface. हाँ, कोई डेटा आपका टेबल में पड़ा है उसको देखने के लिए, ठीक है. क्लियर? यूजर इंटरफेस, एनी क्वेश्चंस? ओके, everybody understood how will you execute a command? Select and click on execute. Yeah, पूरा अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करोगे तो what will happen? Whatever all the commands which are written in the query editor, they get executed one by one. एक के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाए. सेलेक्ट करने का मतलब है मुझे सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट करना है. एनी क्वेश्चंस? क्लियर? सर ये जो टेबल का नाम है क्या, सेल्स LT? यस, दैट्स करेक्ट. ओके ओके, सो लेट्स सी. आज थोड़ा सा थ्योरी हम ज्यादा करेंगे बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट डे. नाउ व्हेन यू राइट SQL स्टेटमेंट्स और यू कैन से SQL कमांड्स, देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ SQL कमांड्स. जनरली उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं. पहली कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज DDL. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. So what is this category of DDL command used for? अगर मुझे कोई टेबल क्रिएट करनी है तो मुझे क्रिएट कमांड यूज करनी पड़ेगी. क्रिएट को किस टाइप की कमांड है? DDL. ऑल्टर करना है टेबल को, DDL. ड्रॉप करना है टेबल को, ये भी DDL. क्रिएट करने के लिए टाइम पे हमें क्या क्या बताना होता है कि कॉलम कौन कौन से चाहिए मुझे, उन कॉलम का डेटा टाइप क्या क्या चाहिए, राइट. तो ये सारी कमांड्स में हम क्या कर रहे हैं? डेटा को डिफाइन कर रहे हैं. दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. second category of SQL statement, that is called as data manipulation language. What do you understand by manipulation? डेटा को चेंज करना. चेंज मतलब मान लीजिए सैलरी अप्रेजल हुआ है and there is an increase in the salary. So what do you have to do? You have to change the salary. What is that? That is manipulation. Is that clear? Some employee has left the organization, so you want to update their employment status, resigned or active. So from active, you have to update the status as resigned. That is also data manipulation. So data manipulation, when you want to change the data, उन कमांड्स को हम क्या बोलते हैं? DML कमांड्स. एंड एग्जांपल्स क्या है? इंसर्ट. इंसर्ट मींस यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू रो. अपडेट कमांड के थ्रू आप डेटा को चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो. और डिलीट कमांड के थ्रू आप डेटा को डिलीट कर सकते हो. सो ऑलवेज रिमेंबर, when we are talking about changing the data, that is called as data manipulation. और उसके लिए कौन कौन सी कमांड्स होती हैं? इंसर्ट, अपडेट एंड. देन थर्ड टाइप ऑफ क्वेरीज को हम बोलते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज. व्हाट इज डेटा क्वेरी? डेटा मेरा स्टोर्ड है, मुझे उसको देखना है, रिट्रीव करना है, जो मैंने अभी किया. तो व्हाट इज दैट? दैट इज डेटा क्वेरी. तो जैसे सेलेक्ट को यूज करके हम डेटा को देख सकते हैं. एंड द फोर्थ इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. व्हाट इज डेटा कंट्रोल? मान लीजिए मुझे आई वांट टू limit people from viewing the data. Some people, for example, somebody who is an HR manager, I want him to view the salary details, permissions, right? But some people, maybe somebody who is an HR executive, I don't want to reveal the salary of other employees to him.
So I would like to limit the data to that person. So you can control that through data control, basically access control. Clear है? तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है grant and revoke. So these are the 4 categories of SQL statement. ठीक है? Yes. So today we are starting with SQL now. First of all, the first command which we are going to learn today is how to create a database. ठीक है? मुझे एक डेटाबेस बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो मैंने बताया था SQL का बड़ा सिंपल सिंटैक्स होता है. तो अगर मैं कहूंगा डेटाबेस बनाओ तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे? क्रिएट डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम. दैट्स ऑल. Because I told you SQL is just like English. ठीक है? So let me write in my editor. I will write, let me create a database. Let's say DB02 or 2nd of July, right? So let's say create, I will write create database. Space की कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है? DB, or let me give a name. DB10 कर देते हैं, right? Okay, let's say DB July. Naam. This is the name of my database which I am creating. What is this? This is the command, and this is the name of the database which you want. So this is what is this? This is the way you will create a database. इसको execute करेंगे. हाँ. Select करो, and I'll click on this button called as execute. I got a message, command completed successfully. How will you check whether this database has been created or not? So I'll go to database, right click, and I'll click on refresh. And then do you see somewhere? Can you see a new database? A new database has been created. Difficult, mushkil. It's just like English, right? That's the way you write. Okay. Next thing. How देखो डेटाबेस बना लिया. अब हमने मान लीजिए इसके अंदर आप टेबल्स बनाना. Sir, I have a question, sir. Yes, please go ahead. Sir, you have written this create database under the select start from sales LT. No, forget about this. Let me delete it. Right? Okay, is that clear? So until you are not selecting it, it will not execute it, right? Absolutely correct. Absolutely correct. So if I select it, which command will get executed? This command will only get executed, which I have selected. This will not get executed. Is that clear? What is the importance of selection? I only want to execute this statement. That is why I select it. Clear? Yes. Perfect. Any other question? Everybody understood how to create a database? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. ये आपका नाम है. डेटाबेस का कोई नाम होना चाहिए ना. इस नाम से हम उसको पुकारेंगे. डेटाबेस तो जनरल वर्ड है. अब हर डेटाबेस का नाम भी होना चाहिए ना. तो वो मैंने नाम दिया है डीबी. आप कोई भी नाम दे सकते अपने हिसाब से. ठीक है? क्योंकि एसक्यूएल सर्वर पे तो मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं ना. उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनका नाम देना चाहिए. एनी क्वेश्चन सो फार? एनी डाउट? Sir, 18 on Google अलाउ नहीं करे. नो टू डेटाबेस कैन हैव द सेम नेम. अब मैं इस कमांड को फिर से एग्जीक्यूट करता हूं. व्हाट विल हैपन? आई गॉट एन एरर. डेटाबेस DB Chulai already exists. Choose a different database name. You can't have two database with the same name. ठीक है? Okay. Now, before I create tables, two things I want to tell you.
how to write comments in SQL Server. What are comments? Comments क्या होते हैं? जैसे हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ नोट लिखना चाहता हूँ, ठीक है, पॉपअप बॉक्स टाइप से। हाँ, तो वो क्या है, वो नोट हम लिखेंगे, उन नोट को लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, डबल डैश, 2 dashes, and after that I can write state query to create a database. Okay. पूरा एक तो ये क्या है, ये एक मेरे लिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट है, ठीक है, और 2 डैश के बाद SQL server will treat this statement as a comment, not as a code. ठीक है, तो वो इसको एज ए कोड नहीं ट्रीट करेगा क्योंकि यहां पे पहले डबल डैश। दिस इज द वे वी राइट कमेंट इन SQL सर्वर। क्लियर है? सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या होगा, इसको एज ए इग्नोर कर देगा, और यू कैन से दैट इट विल नॉट ट्रीट दिस सेंटेंस एज ए कोड। दिस इज जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग टू रीड माई कोड बेटर। मेरे अपने हेल्प के लिए मैंने लिखा डबल डैश कमेंट लिखने के लिए, इसको ऐसे कोड की तरह ट्रीट नहीं करा। वैसे मैंडेट है क्या कि डबल डैश लिखना, अगर ना लिखे तो? सॉरी, नहीं सर, ये बेसिकली कोड जो है इस, ये जैसे आप मुझे कोड ये भेजोगे फाइल समझने के लिए, मुझे इसलिए लिख रहे हो ना ये क्वेरी? यस यस, फाइल को समझने के लिए अपने लिए कोड लिखा। मतलब हम कोई बनाते हैं जब डेटाबेस, जरूरी नहीं लिखना, हम अपने लिए कुछ बना डेवलप कर रहे हैं तो बनाने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 डैश हटा देता हूँ तो ये कोड हो जाएगा एक तरह से। अब क्या होगा, ये मुझे एरर देगा ना, एरर क्योंकि वो देगा, कहेगा कि ऐसी कोई स्टेटमेंट ही नहीं, सिंटैक्स एरर देगा। ओके ठीक है सर, राइट, सिंटैक्स एरर। लेकिन तो अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इंग्लिश में यहाँ पर अपनी हेल्प के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन अगर जैसे जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लिखा 2 डैश के साथ, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, राइट, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा वो। हाँ ठीक है, इसको वो ऐसे ये मैंने अपनी हेल्प के लिखा है, तो दिस इज जस्ट टू राइट, दिस इज द वे यू राइट कमेंट इन कोडिंग समझने के लिए इजी होगा। ओके, कोडिंग समझने, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सर दिखाई कहाँ पड़ेगा? दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये तो कोड है ही नहीं, ये मेरी जो, अब मैंने इस फाइल को सेव कर लिया, ठीक है, अब मैं कल इस फाइल को रीड करूंगा कल आके, तो मुझे क्लियरिटी हो जाएगी ना कि ये स्टेटमेंट क्या चीज है। तो इसको हम कैसे देखेंगे सर? वही तो मैं मतलब जानना चाहता हूँ सर। जैसे कल हम ओपन करेंगे, हाँ, तो मतलब हम जब अपनी इसको फाइल को रन करेंगे तभी दिखाई पड़ जाएगा हमें? हाँ देखो, मैं अब देखो ये मैंने एक फाइल बनाई है, इसको मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल में गया, सेव, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ SQL सर्वर पे। अपना एक फोल्डर है, एक नया फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम है जुलाई 2 जुलाई SQL 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई से नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया, और इसके अंदर मैं इस अपनी फाइल को सेव कर लेता हूँ। देखो इस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .SQL। SQL फाइल्स का एक्सटेंशन होता है SQL सेव, ठीक है। अब मैं कल को ये मैंने बंद कर दिया, अब मैं कल आया and I want to read my code. Right now there is only one code because my file can have even 100 codes as well, right? And suppose you want to understand my file कि सर ने क्या लिखा है codes, तो you can easily open my file and you can easily read कि हर statement का मतलब क्या है। तो मैं ओपन करता हूँ SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और ओपन भी करने की जरूरत नहीं है, आप डबल क्लिक करोगे तो अपने आप ओपन हो जाएगा। कनेक्ट, फाइल, ओपन, दिख रहा है कहां से ओपन करना है, फोल्डर SQL कोड्स 2 जुलाई, ओके, यहां से नहीं करे, अब यहां पे जाओ SQL कोड्स, हमारा फोल्डर कहाँ गया, ये रहा, ये फाइल दिख रही है SQL, इस पे डबल क्लिक कर दो, ओपन हो गई। डिटेक्ट नहीं किया उसने शायद कुछ, ठीक है, हो सकता है प्रोजेक्ट सॉल्यूशन, हाँ ये है ना, ये
ये आ गया, फाइल यूज करना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब मेरी फाइल को आप रीड करोगे, मान लीजिए टुडे व्हेन द सेशन इज ओवर, आई विल सेंड यू दिस फाइल। विल इट बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, कि हर स्टेटमेंट का मतलब क्या है कमेंट पढ़ के? यस सर। Objective is just for my help, my understanding. I have written something. Is that clear? What is comment? And this is the way you write single line comment. What are these? Single line comment. But if your comment is very big, multiple lines में लिखना पड़ रहा है, then this single line तो बार बार लिखना पड़ेगा। फिर इससे अच्छा है हमारे पास हम मल्टी लाइन कॉमेंट यूज करेंगे। और मल्टी लाइन कॉमेंट के लिए क्या लिखते हो आप? /**, ठीक है? And I will say date is 2nd July 2023, topic introduction to SQL, और क्या लिख सकते हैं? ठीक है, अब ये मेरा जो कमेंट है 2 लाइन में, राइट? सो मैं और लिख लेता हूं, क्रिएटिंग डेटाबेसेस एंड टेबल्स, और मैं इसको बंद कर सकता हूं। आई विल यूज asterisk and // what will happen? Whatever you have written between // asterisk and // it will be treated like a comment, not a code. So if your comments are very big, so you can write it in, and you have to write it in multiple lines, so you can use multi-line comments as well. So this is called as multi-line comment. This is the way you write multi-line comment. और जो पहले हमने देखा था उसको क्या था? सिंगल लाइन कॉमेंट। Is that clear? So if you will run, what will happen? Nothing will happen. No output. Why? Because this is just a comment. Python or your SQL server has ignored all these lines because they are between these. And that is how you can write multi-line. Question, doubts? ये कमेंट कहाँ पे कैप्चर होगा फिर? अगर कमेंट हम इंटर करते हैं यहाँ पे तो कुछ तो इसका होगा कि कहाँ पे इसको इसका रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस है ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, कोड को रीडेबल बनाने के लिए, राइट? अभी तो हम छोटा कोड लिख रहे हैं, कल को आप 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखोगे। मान लीजिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ गया, एक फंक्शन बनाने में हो सकता है 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है, और आप कंपनी छोड़ के चले गए। कल को कोई दूसरा आया, वो आपके कोड को कैसे अंडरस्टैंड करेगा? अगर कमेंट होगा तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है ना किसी दूसरे के कोड को। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमेंट? टू मेक द कोड रीडेबल, नथिंग एल्स, राइट? नथिंग एल्स, अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी दैट अपनी हेल्प के लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, Okay. yes. So now we have created a database. Now within that database, now we will create our tables. Tables कैसे create करते हैं? ठीक है, so create, ये समझ में आ गया database create करने का syntax? Create database and the database name. अब हमें table create करनी है, ठीक है? table कैसे create करना है? For example, मुझे एक डेटाबेस बनाया जिसका नाम है DB जुलाई, और DB जुलाई के अंदर मुझे टेबल क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उस डेटाबेस में जाओगे, उसको सेलेक्ट करोगे, क्योंकि उस डेटाबेस के अंदर आपको टेबल बनानी। तो सेलेक्ट कैसे करोगे? लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, राइट? वेयर एम आई राइट नाउ? आई एम इन द मास्टर डेटाबेस, और मुझे टेबल्स कहाँ बनानी है? अपने डेटाबेस में। तो मैं इस पे करूंगा क्लिक, एंड आई सेलेक्ट माय DB जुलाई। Okay. I'm now, where am I right now? I am in my database DB जुलाई। Okay. अब आप जो भी यहाँ पे क्रिएट करोगे टेबल्स, वो कहाँ बनेंगी? DB जुलाई के अंदर। Okay. ठीक है, this is one way. Another way is you can write a command as well to select your database.
ठीक है? Okay. So for example, right now, let's say I am in COVID-19 and I can write a command because I want to create some tables in DB July. So I will write the command use database, or you can say use DB July. अब क्या करेगा ये? यहाँ पर देखो अभी COVID-19 है, ठीक है, और मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ. अब तो क्या आ गया? DB July आ जाएगा ऑटोमेटिक. DB July. Is that Okay. clear? Yes sir. ओके. सबसे पहले देखो अभी मैं कौन से डेटाबेस में हूँ? COVID-19 में. मुझे टेबल कहाँ बनानी है, किस डेटाबेस में बनानी है? जो मैंने DB जुलाई के अंदर बनाना है. तो मुझे उस डेटाबेस में जाना पड़ेगा ना, पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो मैं क्या कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ? या तो यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ, DB जुलाई आ गया, या दूसरा तरीका क्या है, मैं कमांड के थ्रू भी लिख सकता हूँ. मैंने कमांड लिखी जिसका नाम है यूज DB जुलाई, मीन सेलेक्ट DB जुलाई. हाँ, अभी ऐसे करूंगा सेलेक्ट, और यहाँ पे देखो अभी COVID-19 है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इस कमांड को. अब देखो यहाँ पे DB जुलाई आ गया. आप बताओ. कोई एरर आया? इट इज नॉट केस सेंसिटिव. ठीक है, और इसको मैं थोड़ा स्पेस भी देता हूं. कोई एरर आया? मल्टीपल स्पेसेस से कोई एरर नहीं, बिकॉज इट इज ए लूजली टाइप लैंग्वेज, राइट? हेयर स्पेसेस, केस इज नॉट, केस इज डजंट मैटर. ठीक है, ओके. Is that clear? So after creating the database, what is the next step? Select your database. Now I will create a table. What is the syntax to create a table? Create table. Creating tables. Okay, so I've written a comment, creating tables. So I will write create table. फिर टेबल का नाम, हम एक टेबल का नाम लेते हैं, एक कोई भी छोटी सी टेबल, लेट्स से कस्टमर टेबल बना लेते हैं. ठीक है, सो आई विल से क्रिएट टेबल कस्टमर. ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होता है. अब उस कस्टमर टेबल में आपको कॉलम कौन कौन से चाहिए? लेट्स से मुझे चाहिए कस्टमर आईडी चाहिए. कस्टमर आईडी का डेटा क्या होता है? नंबर वाला होता है. तो मुझे यहाँ पे करता हूँ इंट, उसका डेटा टाइप इंटीजर. ओके, जहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक हो फिर. यहाँ पे फिर एक और नाम ले लेते हैं, जैसे कस्टमर का नाम. सो आई विल से कस्ट अंडरस्कोर नेम. सर अगर अल्फा न्यूमेरिक अगर कस्टमर कोड हो फिर. हाँ, उस पे भी आ रहा हूँ. ठीक है, कस्टमर नेम क्या होता है? तो कैरेक्टर होते हैं, टेक्स्ट होता है. तो मैं क्या उसको लेता हूँ? वैरकर. वैरकर क्या होता है? कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो सकता है. और बगल में लिख देता हूँ 100. 100 का क्या मतलब है कि 100 कैरेक्टर्स तक का डेटा नाम ये ले सकते. तो व्हाट इज दिस? दिस इज डेटा टाइप और दिस इज साइज. तो अगर अल्फा न्यूमेरिक डेटा है तो कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे? वैरकर. तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है ये अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं. स्पेशल कैरेक्टर्स ऑन द कीबोर्ड, लाइक जो भी आपके नंबर और कैरेक्टर्स के अलावा होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल कैरेक्टर. So any combination of alphabet, number and special character you can have when the data type is varchar. तब भी आप varchar यूज, तब भी varchar. सर एक क्वेश्चन था. हम्म, सर कस्टमर नेम के बीच में जो अंडरस्कोर दिया है, कस्टमर आईडी के नीचे नहीं दिया, मतलब इसका क्या मतलब समझा नहीं. ओके, देखो ऐसे दे सकते हो. आपका नाम थोड़ा सा बेटर देने के लिए होता है. मान लीजिए मेरा कोई कॉलम का नाम बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, वो अंडरस्कोर यूज कर लेता हूँ, rather than राइटिंग एक वर्ड की तरह. जो कस्ट आईडी ऐसे लिखने से अच्छा है मैं ऐसे लिखूं. बेटर क्या है? अंडरस्कोर से लिखने तो ज्यादा बेटर क्लैरिटी आ रही है. ये कॉलम क्या है? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो आपके अपनी हेल्प के लिए आप कैसा नाम देना चाहते हो. ओके. ओके सर ये कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम हेडर्स है. ये हेडर्स है, बिल्कुल सही. headers है. बिल्कुल ये हेडर्स है. और ये आईएनटी फॉर इंटीजर वैल्यू.
INT का मतलब है कि ये कॉलम जो है किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा। मैं कह रहा हूँ ये नंबर्स। इंटीजर करेगा। इंटीजर मतलब नंबर्स, इसमें सिर्फ नंबर्स आएंगे। कस्टमर नेम के अंदर डेटा टाइप क्या होगा? वैरकैट। वैरकैट का क्या मतलब है? ये डेटा अल्फा न्यूमेरिक स्टोर कर सकता है, अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी डालो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उसका साइज क्या होना चाहिए? 100 से बड़ा नहीं होगा। 100 लेटर्स का सर ना, मतलब 100 100 characters. is Correct. the हाँ. limit. That is the limit. Very good. Absolutely correct. हाँ. Any questions? Any doubts? We are creating a very simple table. Customer table, which will have only 2 columns. First is customer ID and second is customer name. That's all. How will you execute it? I will select these two statements. Okay, and I'll click on execute. Command completed. Okay. Is there any shortcut for executing the program? Yes, F5. F5. The shortcut is F5. Okay. Thank you, sir. Thank you. सर इसमें कॉमा मैंडेटरी है? Comma is not mandatory. It's not mandatory. It's not part of syntax. But just as a best practice, I will advise you that you use semicolon, because that will make your code much more readable, better, right? It will be readable better, right? थोड़ा understand करने में आपको better, ठीक है? But it is not mandatory. Now we have created a table. Where will you see the table? On the left hand side, I will click on the databases. DBJuly. I'll go to DBJuly. I'll go to tables. And do you see a table called as dbo.custom? हमारे एक customer table बन गई है. Is that clear? और अगर इस कॉलम के इस टेबल के अंदर देखना है कौन कौन से कॉलम बने हैं, तो मैं फिर से प्लस साइन पे क्लिक करूंगा. And I click on plus sign on the column. You see the 2 columns, cust underscore ID and cust underscore. Is that clear? How will you create a table? Any questions? अभी एक खाली है. अभी हमने बस डिफाइन किया है. अभी हमने क्या किया है? डिफाइन. हमने पढ़ी थी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का कैटेगरी. डेटा डेफिनेशन का क्या मतलब है? डिफाइन करना. अभी मैंने टेबल को डिफाइन किया है कि इसके अंदर कॉलम कौन कौन से होंगे, वो कॉलम का डेटा टाइप कौन कौन सा होगा. हाँ, पहले टेबल होगी तभी तो डेटा डालोगे, है ना? वो भी हो सकता है, कहीं से इंपोर्ट करके भी ला सकते हो आप बनी बनाई टेबल, वो भी पॉसिबल है. ठीक है, बनी बनाई टेबल आप ला सकते हो. आप शो कर सकते हो? आई एम सॉरी सर, इंपोर्ट कैसे करेंगे ये बताइए, आप बता दोगे? हाँ, वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको अभी नहीं बताऊंगा. बट यू कैन, जो सी आपके पास ऑप्शंस होते हैं इंपोर्ट करने के. जैसे राइट क्लिक करोगे, टास्क पे जाओगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट फ्लैट फाइल, इंपोर्ट डेटा, राइट. सारे ऑप्शंस आपके. आई विल टेल यू दैट लेटर, अभी नहीं बताऊंगा. ठीक है, इन वन ऑफ द क्लास वी विल डिस्कस ऑल दिस. सो बट इफ यू वांट टू इंपोर्ट, यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, इंपोर्ट डेटा. आपके ऊपर F5 का फंक्शन वाली कीज होती है ना, उसको प्रेस करो और सिलेक्ट करो. पहले कमांड सिलेक्ट करो और F5 प्रेस करो. एग्जीक्यूट करो. एनी क्वेश्चंस? क्रिएट करना आ गया? यस सर, अब एंटर करना डेटा. ओके, अभी क्रिएट किया. ठीक है, जैसे ये टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं, रोल नंबर, ये आईडी, एज. ठीक है, आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो. अब है इंसर्ट. डेटा क्रिएट टेबल कर ली, अभी खाली है. अब क्या करेंगे, उसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करें. डेटा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है जिसका बोलते हैं इंसर्ट. ठीक है, बताऊंगा अभी. नेक्स्ट टॉपिक उसी पे करें डिस्कस. अभी थोड़ा सा बस आउटलाइन देख रहे हैं कैसे कैसे. ठीक है, so let's insert some data. Inserting data. और देखो, इस विंडो को आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं. ठीक है, आपको यहाँ पे वो दिखाई दे जाएगा. अभी
छोटा करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा अभी, और यहाँ से आप जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, जितना बड़ा आपको छोटा दिखा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 70 करोगे जैसा हो, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, क्या करना है मुझे अभी? डेटा इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करने के लिए कमांड होती है इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट और उसका नाम है इंसर्ट। कहां पे इंसर्ट करनी है? इंसर्ट इनटू, किस टेबल में करनी है? अंदर करनी है कस्टमर। कस्टमर। क्या करना है? वैल्यूज, ठीक है। और वैल्यूज में ब्रैकेट में डालोगे, मुझे चाहिए आईडी और नाम, तो 1 और कोई नाम, जो भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है उसको हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो लेट मी पुट ए नेम, लॉरेंस रॉबर्ट। इज दैट क्लियर कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं? सो कमांड यूज करोगे इंसर्ट इनटू द टेबल नेम एंड द वैल्यूज, वैल्यूज का नाम ब्रैकेट, और डेटा टाइप देखो 1 है, और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को आप सिंगल कोट्स में लिखो, सेलेक्ट करो एंड एक्जीक्यूट। 1 row has been inserted. अब यार उस पे भी आ रहा हूँ, मल्टीपल कैसे करना है वो भी बता। इज दैट क्लियर? कैसे सिंगल रो कैसे इंसर्ट करनी है? जैसे अब आपने पूछा सर मुझे मल्टीपल करनी है, मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना है, तो मल्टीपल करने के लिए तो ये था इंसर्टिंग मल्टी सिंगल रो। अब मैं करता हूं इंसर्ट इंसर्टिंग, एक साथ मुझे बहुत सारी रोज इंसर्ट करनी। अब वो कैसे करूंगा? सेम कमांड, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज और ब्रैकेट में 2, एक और नाम कोई बताओ, क्या नाम है आपका? तरुण। अमित। तरुण, एक ये रो हो गई, फिर कॉमा लगा दिया, फिर से एक और ब्रैकेट स्टार्ट, 3 अमित, फिर से एक ब्रैकेट, तो आप कॉमा लगा के इतनी भी बार लिख सकते हो। और प्रियांक। प्रियांक। प्रियांक, सब अपना नाम बताओ। 5 शाहनवाज। शाहनवाज, कोई बात नहीं, हम 5 एक और कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट लेट्स से 6 मनीष, ठीक है। काफी इस तरह से आप रेप्लिकेट कर, और लास्ट में कोई कॉमा नहीं देता, कॉमा लगा के मल्टीपल रोज सेलेक्ट करो सारी और एग्जीक्यूट। कितनी रो इंसर्ट हुई हैं? 5 रोज इफेक्ट। इज दैट क्लियर? हाउ विल यू इंसर्ट मल्टीपल रोज इन योर टेबल?